صافی جو کہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ان کے لیکچرز وغیرہ سنتے آ رہے ہیں. تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ٹف اسکیڈول میں سے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں آ گئے. اور خاص طور پہ میں سر اکبر شاہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ میں نے جب بھی ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس کیا اور بہت اچھا گائیڈ کیا ہمیں. تو آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ, اور آپ سب آڈینس کو اور ہمارے صحابی کو میں یہاں آنے پر خوش آمدید خیر راغلے جی آیانو ویلکم کہتا ہوں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. Mr. Professor Hamad Safi. Starting with the precious and compassionate name of Allah, the King of the Kings, the Lord of the Lords, the Creator of all the creatures, the Maker of Arus and the Shaper of beauty. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to thank the management of Islamic University and the organizers of this program, and specifically to Sir Abid Khatak for inviting me in such an amazing program, in such an unprecedented gathering. آج کا جو میرا سیشن ہے میں نے اس کو اپنے ٹاپک کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا پارٹ جو ہے وہ You get what you spent your time on, اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ پاکستانیت کے اوپر ہے, پاکستان کے بارے میں ہے اور اقبال کے بارے میں ہے. میں فرسٹ پارٹ کو شروع کرنا چاہوں گا, اور یہ میری ریکویسٹ ہوگی, یہ تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, طلباء ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی ذرا غور سے سنیں اور دوسرے پارٹ کو بھی ذرا غور سے سنیں. اور پہلے پارٹ میں جو میں باتیں کر رہا ہوں اور جو میسیج میں لایا ہوں اس کے ڈیپتھ میں اگر آپ لوگ جائیں تو اس میں ایک بہت اچھا میسیج ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو فرسٹ پارٹ ہے میرا, اور دوسرا پارٹ بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ اپنے ملک کے بارے میں جانیں, اپنی کنٹری کے بارے میں جانیں. فرسٹ آف آل, یو گیٹ واٹ یو اسپینڈ یور ٹائم آن. مارک زکربرگ کہتا ہے کہ تم اس چیز کو حاصل کرتے ہو جس چیز کے اوپر تم اپنا ٹائم لگاتے ہو. گراہم بیل تو آپ جانتے ہوں گے جس نے فون ایجاد کیا, اسمارٹ فون جس نے ایجاد کیا, اس نے سارا ٹائم جو ہے اپنی زندگی کا میجورٹی ٹائم جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, میں نے پوری دنیا کو فائدہ دینا ہے, میں نے پوری دنیا کو فائدہ دینا ہے. وہ ڈفرینٹ سوچتا تھا اور اس نے اپنی تھاٹس کی جو وہ سرکل ہے اس کو توڑ کر اس کے باہر آ کر اس نے سوچا تھا. گراہم بیل اپنے ون آف دا کوٹیشنز میں بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا میجورٹی ٹائم جو ہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے کچھ مختلف کرنا ہے, کچھ ایسی چیز ایجاد کرنی ہے جس سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچے اور ساری چیزیں آسان کر دے لوگوں کے لیے. اور اس نے وہ کیا, اس نے موبائل ایجاد کر دیا, اسمارٹ فون ایجاد کر دیا. کیوں؟ اس کا زیادہ تر ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ ہو رہا تھا. دوسری بات, مارک زکربرگ, فیس بک جس نے ایجاد کیا, پروفیسر کلاس میں لیکچر دیتا تھا, مارک زکربرگ پیچھے اپنے ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر فیس بک پر کام کرتا تھا. فیس بک کے سافٹ ویئر اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ پرائیویسی اینڈ شارٹ کٹس ہو, جو بھی چیزیں اس کے اوپر مارک زکربرگ کام کر رہا تھا. اس نے زیادہ تر ٹائم فیس بک کے اوپر اسپینڈ کیا, اس کو فیس بک مل گیا, اس کو اپنا ویژن اس کا پورا ہو گیا, اس نے پوری دنیا کو فائدہ پہنچا دیا. اس کا مقصد تھا کہ پوری دنیا کو میں ایک ہی چیز میں کنیکٹ کر دوں, کنیکٹ کر دیا اس نے فیس بک کے ذریعے سے. تو آپ وہ حاصل کرتے ہو جس کے اوپر آپ اپنا ٹائم لگاتے ہو. دوسری بات, always smile, ہمیشہ ہنسا کرو, چاہے آپ فیل ہی کیوں نہ ہو جائیں. فیل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک ہے پاس ہونا اور دوسرا ہے سیکھنا. اگر کوئی کسی زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے یا آپ اس میں پاس کر جاتے ہو, نیکسٹ چیلنج کی طرف چلے جاتے ہو, یا آپ اس کو سیکھ جاتے ہو اس چیلنج کو کہ اگلی دفعہ میں نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کو فیس میں نے کیسے کرنا ہے. تو always smile, and smile is the best medicine. اسمائل جو ہے یہ سب سے بہترین دوائی ہے. اگر آپ ایگزامز میں فیل ہو جائیں, خیر مسکرائیں, کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ پاس ہو جاؤں گا. ظاہری بات ہے
हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स वो फेल हो जाते हैं, वो टेंशन में पड़ जाते हैं, या तो वो रोते हैं या तो घर में कोने में बैठते हैं, लेकिन ऑलवेज स्माइल, कहते हैं खैर अगली दफा कोशिश कर लूंगा, अगली दफा पास हो जाऊंगा। अब में से यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक काम किया उस काम में फेल हो गए? कितने स्टूडेंट्स हैं? हाथ खड़ा करें। सारे एग्जाम्स फेल करके आए हैं। सही। अच्छा, इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं कि दोबारा उन्होंने उस चीज पर ट्राई किया? वो भी सारे। अच्छा, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा फेल हो गए? अच्छा, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा मतलब अगेन ट्राई किया उसने, फिर तीसरी दफा? फिर भी सारे। अच्छा, फिर फेल कौन हो गया? सारे हैट्रिक मार दिया। अच्छा, सही है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, पहली दफा किया तो वो बहुत ज्यादा खराब था, दूसरी दफा किया था तो थोड़ा सा अच्छा होगा, तीसरी दफा अच्छा किया वो उससे भी अच्छा होगा, और अगर चौथी दफा पांचवी दफा ट्राई किया होगा तो वो पहले वाले से क्वार्टर ऑफ बेटर होगा, थोड़ा सा बेटर होगा पहले वाले से। तो बात में ये कर रहा था कि आप वो हासिल करते हो जिसके ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, लेकिन ज्यादातर आपका टाइम स्टूडियो में लगता है सिंगिंग में आप गाने गाते हो, उसमें आपका ज्यादातर टाइम रहता है, तो आप बड़े होकर सिंगर बन जाते हो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम तुमने सिंगिंग में गुजार दिया, सिंगिंग में तुम गुजारो, क्योंकि ये तुम्हारा पैशन था, तो तुम एक सिंगर बन गए। अब जितना उन लोगों के साथ टाइम बिताएंगे कि जो आपकी फील्ड से ही ताल्लुक रखते हैं, जितना उन लोगों के साथ टाइम बिताएंगे उतना ही आप उनसे सीखेंगे भी, उतना ही आप नॉलेज हासिल करेंगे उनसे, उतना ही आपके दिमाग में न्यू आइडियाज क्रिएट होंगी। और तीसरी बात, डोंट लिव विद अ लिमिटेड लाइफ। कभी लिमिटेड लाइफ में मत जियो, किसी चीज तक महदूद ना रहो, अपने थॉट्स को महदूद ना रखो। हमारे ज्यादातर थॉट जो है महदूद होते हैं, किसी चीज तक, किसी हद तक होते हैं। वो थॉट्स के उस सर्कल को तोड़ो, उससे बाहर आओ, डिफरेंट सोचो, डिफरेंट न्यू आइडियाज क्रिएट करो। इस तरह ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, इन सब ने किया था। आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, स्टीफन हॉकिंग ने उस सर्कल को तोड़ा तो उस सर्कल के बाहर न्यू आइडियाज क्रिएट किए थे। तब जाकर उन्होंने ब्लैक होल को डिफाइन किया, तब जाकर उन्होंने जो है उसको डिफाइन किया, ग्रेविटी को। न्यूटन को तो आप जानते होंगे ना। स्टूपिड क्वेश्चंस पूछो, स्टूपिड क्वेश्चन, स्टूपिड आइडियाज अपने दिमाग में क्रिएट करो, जिस तरह न्यूटन ने किया। उसने सेब को हाथ में पकड़ा, हवा में से छूट दिया, नीचे गिर गया। उसके दिमाग में स्टूपिड आइडिया आया कि मैंने तो इसको हवा में छोड़ा, ये नीचे क्यों गिरा, ये जमीन की तरफ क्यों गया। आइडियाज क्रिएट होते रहे, सर्कल को तोड़ा, तब सर्कल के बाद सोचा, तभी तो जाकर ग्रेविटी को उसने डिफाइन किया, डिस्कवर किया ग्रेविटी को, पूरी दुनिया को ग्रेविटी के बारे में बताया कि आप जितना ऊपर से चीज छोड़ते हो उतनी ही वो नीचे ही आती है। याद रखिए, फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है, सीखना और पास होना। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो जब तक आपने उस चैलेंजेस का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, एक पहाड़ खड़ा नहीं किया होता, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप बार बार फेल होते, क्लासों में हो, सिर्फ क्लास में आप फेल नहीं होते। आप कोई चीज है, कोई आइडिया आपने क्रिएट किया या कुछ और काम आपने किया, अपने बॉस को जाकर दिखाया। फॉर एग्जांपल, आप नौकर हैं और आप कंप्यूटर में काम करें या किसी और चीज में काम करें, आपने कुछ आइडिया क्रिएट किया और जाके उस फाइल को बॉस के सामने रख दिया, बॉस ने कहा कि मैं नहीं मानता, रिजेक्ट कर दिया उसे। अब बार बार ट्राई करो, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक दफा तो ऐसा वक्त आएगा बॉस उस आइडिया को कैच कर लेगा। याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, उसका तर्जुमा मैंने किया, उस पर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि मैंने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया है। जमीन है तो आसमान है, चांद है तो सूरज भी है, हर चीज को अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया। सफेद है तो काला है, सारी चीजों को अल्लाह ने जोड़े में पैदा किया है। कामयाबी है तो नाकामी भी है, नाकामी है तो कामयाबी है। कुदरत का एक निजाम है, एक निजाम है। जब तक आप बार बार फेल नहीं होते, बार बार गिरते नहीं है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये इस पॉइंट के बाद इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, और डिस्क्राइब करने के बाद आप लोग दुआएं मांगे कि अल्लाह हमें एक बड़ी चैलेंज दो, एक सख्तरीन से सख्तरीन चैलेंज दो हमें,
एक बड़ी मुश्किल चैलेंज हो, क्योंकि जितनी ही मुश्किल चैलेंज जो है आप फेस करते हो बार बार, तो उतनी ही कामयाबी आपको नेचर देती है, उतनी ही कामयाबी कुदरत अल्लाह ताला आपको देता है। जितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, उतनी कामयाबी अल्लाह ताला फिर आपको देते हैं, कुदरत आपको देती है। क्योंकि ये जोड़ा था, आपने मेहनत की थी, आप बार बार फेल हो गए थे, फेलियर सक्सेस तक पहुंच गए। जब तक आप फेलियर का एक पहाड़ खड़ा नहीं करते ना, और उस पहाड़ के से आगे गुजरते नहीं है, कामयाबी शुरू नहीं होगी। उस फेलियर के पहाड़ को खड़ा करके जब आप जाएंगे ना, तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे आपके सामने। हमारे स्टूडेंट ज्यादातर वो काम करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं वो छोड़ यार, वो चले जाते हैं दूसरी चीज की तरफ, वो अपना मकसद बदल लेते हैं। अपने मकसद के साथ खिलवाड़ ना करो, मेक योर ओन डेस्टिनी, अपनी एक मकसद बनाओ। अल्लाह ताला ने आपको किस चीज के लिए दुनिया में भेजा है, मेक योर ओन डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी खुद बनाओ। एंड आस्क फॉर एडवाइसेस, हमेशा एडवाइसेस लो। बाबा जी तो आप जानते होंगे, अशफाक अहमद साहब, वो कहते हैं, एक इंटरव्यू उनसे हो रहा था तो उसमें वो कहते हैं मैसेज कि पुत्र कभी कभी बड़ों के साथ भी टाइम गुजारा करो, सारी चीजें गूगल और यूट्यूब पे नहीं मिलती। मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सारी चीजें गूगल और यूट्यूब पे नहीं मिलती, कभी ना कभी बड़ों के साथ भी टाइम बिताया करो। अगर आप बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ टाइम बिताएंगे, उनसे आप आइडिया हासिल करेंगे, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगे, तो आप उनसे सीखेंगे कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, और उन्होंने जिंदगी में ये किया, उनके साथ ये हुआ। वो सारी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो तारीख हो, आपको बताएंगे कि मैं जब पैदा हुआ था, मैं जब स्कूल में था, तब स्कूल के हालात कैसे थे और आजकल स्कूल के हालात कैसे हैं। लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स में जाएं, इस तरह के जो सेमिनार्स में इसमें आप पार्टिसिपेशन करें, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन करें। आप अपने अंदर इनर पोटेंशियल्स को बाहर निकालें और उसको अपना मकसद बनाए, अपना टारगेट बनाए अपनी जिंदगी का, तब आप उसमें आगे जो है बढ़ेंगे। जिस तरह मैंने बात की, बुजुर्गों से सीखो, अपने बड़ों से सीखो, माँ बाप से सीखो, चाचा से सीखो, दादा से सीखो। अगर आपके दादा जिंदा है उनके पास जाए, उनसे नॉलेज हासिल करें, आप सबसे सीखो। और इमेजिन द आउटकम, हमेशा जो भी मकसद आप सेलेक्ट करते हो उसके रिजल्ट के बारे में सोचा करो, किसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो मत जाओ, अगर रिजल्ट अच्छा है तो जाओ। अगर वो मकसद आपके इनर पोटेंशियल से रिलेटेड है तो जाओ। याद रखो, 1% इंस्पिरेशन इज इक्वल टू 99% ऑफ परस्पिरेशन। आप 99% कोशिश करते हैं, 99% आप हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने विजन को पाने के लिए, तो 1% इंस्पिरेशन आपकी बनती है और इट इज इक्वल्स टू 100% कामयाबी मिलेगी। 99% पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड 99% पर्सपिरेशन इज इक्वल टू 1% इंस्पिरेशन, फिर आप एक इंस्पिरेशन बनते हैं। और इंस्पिरेशन अगर बनना चाहते हैं तो डू इट योरसेल्फ, अपना काम खुद करो, किसी और को छोड़ ले, किसी और का अपना काम ना छोड़ो, किसी और को ये ना दो, अपने कपड़े भी खुद दो, खुद इस्त्री करो, खुद धो अपने कपड़े, खुद इस्त्री करो, अपने टाई जुराबे सब कुछ खुद ही रेडी करो। किसी और को, अम्मी पर एक्स्ट्रा बर्डन ना बनो, फैमिली मेंबर्स पर, अपनी सिस्टर पर एक्स्ट्रा बर्डन ना बनो। जो भी काम है आपका उसे खुद ही करो, किसी और तक ना छोड़ो और ना उसे महदूद करो। लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर, फेलियर को कैसे हैंडल करना है। इसमें मैंने बात भी की, ऑलवेज स्माइल। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपका एक दोस्त है, आप पास हो गए, उसके पास आते हो, उससे पूछते हो कि यार क्या हुआ, पास हो गए कि फेल, वो कहता है फेल होगा, तुम कहते चढ़ यार आ जाओ, मनाओ, दोबारा कोशिश कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट दफा कर लेना ना, और अच्छे नंबर मिले, हो सकता है पास हो जाओ। मेहनत करना। मेरा एक टीचर है, मेरा जो बेसिक मेंटोर है, जानते हैं वो मैट्रिक में 4 दफा फेल हुए हैं, 4 दफा मैट्रिक में फेल हुए। अगर वो फेल ना होते तो आज मैं यहाँ पर खड़ा ना होता और आपको स्पीच ना देता। अभी मैट्रिक में फेल होने से और यहाँ पे खड़े होने से क्या रिश्ता है। वो फेल हुए ना, वो क्यों फेल हुए, उन्होंने मुझे एक किस्सा किया। उन्होंने कहा मैं नकल से खुद को बचा रहा था। मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने बार बार मुझे बोला नकल करो ना, नकल करो, पैसे दो, नकल करो, लेकिन मैंने नहीं किया। कहते मैंने नकल से खुद को बचा रहा था, मैं फेल हो गया। उसी फेल होने की वजह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया चैलेंज को कि कैसे फेस करना है, और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने
ड्रीम्स को फॉलो करो, जो आपका मकसद है उसको आप फॉलो करें, अपनी जिंदगी का जो विजन है उसको आप फॉलो करो। जैक मा को आप जानते हैं, Alibaba.com का ओनर। जैक मा ने Alibaba.com का नाम क्यों वो किया, अलीबाबा क्यों रखा? कोई और नाम भी रख सकता था अमेज़न की तरह, कि जिसमें ए से लेकर जेड तक एरो है, कि ए से लेकर जेड तक सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। उसने Alibaba.com का नाम क्यों रखा? He thought that I should ask from people, do they know about Alibaba? So he said that I called the waitress and I asked from her that, do you know Alibaba? She said yes. I was shocked. And I said that, who is Alibaba? She said, Alibaba, 40 thieves, open sesame. Alibaba 40 चोर कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, खुल जा सिम कि जो बड़ा सा वो दरवाजा सा खुलता था, अंदर जाते थे, जो भी चीज दिल में आपकी दिल में जो भी चीज थी, जो भी ख्वाहिश थी, वो उठाते थे, मिल जाती थी आपको चीज। तो कहता है, then I went to a street and I asked from 19 to 20 people that, do you know Alibaba? All told me that Alibaba open sesame, Alibaba 40 thieves, सबने मुझे यही सेम जवाब दिया, तो मैंने ये नाम रख दिया। Always choose a best name, हमेशा एक बेहतरीन नाम रखा करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो always choose a best name, ऐसा नाम रखो जो लोगों को मोटिवेट करे, जो लोगों को इंस्पायर करे। ऐसा टैगलाइन बना उस नाम का कि जो लोग देखें, लोग कहे यार ये वाकई अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जाके मैं चीजें खरीदता हूँ, इसके अंदर जाके मैं काम करता हूँ। सो ऑलवेज चूज अ बेस्ट नेम। स्टीव जॉब्स को आप जानते हैं, आईफोन का, एप्पल कंपनी का मालिक, आईफोन जिसने इजाद किया, वो भी बचपन से इसी चीज पर लगा था कि मैं भी कुछ आसानियां पैदा करूंगा लोगों के लिए, मैं भी कुछ डिफरेंट करूंगा। उसने जो है थॉट्स, अपने थॉट्स को महदूद ना किया, लिमिटेड ना रखा, अपने थॉट्स के सर्कल को तोड़कर, बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आया और उसने सोचा, आईफोन बना लिया उसने। माइकल जॉर्डन को आप जानते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट बास्केटबॉलर, वो बचपन से बास्केटबॉल खेलता था, वो बहुत ज्यादा गरीब था। उसका बाप जो है उसे बाहर बेचता था, मेरी उम्र का था तकरीबन जब से उसने काम शुरू किया बाहर से। पहले दिन उसने जब पहली दफा बाप ने उसे भेजा कि जाओ कोई चीज मेरे लिए बेच कर आओ, उसने बाहर से कोई चीज ढूंढी, गया और $1 कमा के आ गया घर। दूसरी दफा गया, $3 कमा के आ गया। तीसरी दफा गया, $5, चौथी दफा $10, पांचवी दफा $11। इसी तरह उसने एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस करने के बाद जब छठी दफा था, उसने न्यूज़पेपर को देखा। न्यूज़पेपर में कोई उस वक्त की एक बेस्ट एक्ट्रेस थी उस टाइम की, वो आई थी उसी शहर में, उसी गांव में एक मूवी बनाने के लिए। तो वो डायरेक्ट अपना एक शर्ट जो गंदा था उसको ले गया, उसको दे दिया कि इस पर अपना साइन करो। उसने साइन कर दिया। मार्केट में जैसे ही गया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके पास जाऊंगा, इससे साइन लेकर मार्केट में भेजूंगा, ज्यादा पैसे मिले, मुझे हो सकता है ज्यादा पैसे मिले, मुझे एक बास्केटबॉल किट मिल जाए। उसने उस लाइन को तोड़कर बाहर एक आइडिया क्रिएट किया, और वो जैसे ही गया और उस शर्ट को जैसे ही बेचने लगा, सडनली 200 से ज्यादा लोग आए। और जिस तरह पुराने जमाने में वो सिस्टम क्या होता था कि कोई चीज थी वो इस तरह रखते थे, लोग खड़े थे, एक कहता था 200 रुपए, कोई कहता था 300, कोई 350, 360, जिसकी बेस्ट ऑफर थी वो आके ले लेता था। वही काम उसने भी किया। पहले लोगों ने $800, फिर चढ़ के उसने $1000 से ज्यादा कमाया एक शर्ट पर और एक सिग्नेचर पर। उसका बचपन से ही ख्वाहिश था, वो बास्केटबॉल खेलता था बचपन से ही। वो कितनी दफा उसका एक पैर टूटा था, तकरीबन 3-4 दफा उसका ये लेफ्ट वाला पैर टूटा था बास्केटबॉल खेलने की वजह से, लेकिन वो वर्ल्ड्स बेस्ट बास्केटबॉलर बन गया। यूसेन बोल्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट रेसर, जो एक फास्टेस्ट पर्सन भी है पूरी दुनिया में, एक रिकॉर्ड बनाया उसने। वो भी बचपन से रेसिंग बहुत ज्यादा करता था। बचपन से स्कूल से जैसी छुट्टी होती थी, उसके स्कूल और उसके घर के दरमियान में कितना डिफरेंस था आपको पता है? 11.3 किलोमीटर। हम आजकल 1 किलोमीटर चलते हैं, हमारे पैर थक जाते हैं। वो 11.3 किलोमीटर, और बीच में एक दरिया भी आती थी, उसको पार करके वो आगे जाता था। लेकिन वो उस 11.3 किलोमीटर को वो 16 मिनट में क्रॉस करता था, इतना फास्ट था वो तेज भागता था बचपन से ही। वो जब से स्कूल और घर के दरमियान ये सफर करता था, वो भागता था। आज वर्ल्ड बेस्ट रेसर बन गया और फास्टेस्ट रेसर भी बन गया। जब आप फेल होते तो आप
को कुदरत कामयाबी भी देती है। जितना नीचे जाते हो उतना ही ऊपर आते हो। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक बॉल है और मैंने ये बॉल ऊपर रूफ की तरफ पहुंचाने, तो मैं इसको जितना नीचे जोर से मारूंगा तो उतना ही ये ऊपर आएगा। तो जितना हम फेल होंगे, जितनी बड़ी मुश्किलात से हम गुजरेंगे, उतनी ही एक आसानी हमें मिलेगी। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, मैंने तकलीफ के बाद राहत रखी है। तकलीफ आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुजरेगी, लेकिन उसमें राहत भी मिलेगी आपको, जोड़ा मिल जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। तो कभी डिसहार्ट कभी भी नहीं होना। ओबामा को भी आप जानते होंगे, उसका भी उसके पास, उसकी अम्मी के पास, वो जब 2 साल का था उसका बाप घर छोड़कर चला गया। उसकी अम्मी जो है वो जॉब करती थी, वो सुबह 5 बजे जाती थी और रात को 12 बजे फिर घर आती थी उसकी ओबामा की अम्मी। ओबामा कहते हैं एक स्पीच में कि मैं 4:30 बजे सुबह के उठता था और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि मैं सुबह के 4:30 बजे उठूं, और कभी ना कभी मैं डाइनर जिसमें हम डिनर करते हैं उस टेबल पर भी मैं कभी ना कभी सो जाता था। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली के पास पैसे ही नहीं थे कि वो मुझे स्कूल भेजे, लेकिन मैं जब सुबह 4:30 बजे उठता था तो मेरी अम्मी 5 बजे तक मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स पढ़ाती थी। एक्स्ट्रा लेसन में मुझे दुनिया की मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं उसकी एक्सपीरियंसेस थे वो मुझे टीच कराती थी, वो मुझे सिखाती थी। और इसी एक्स्ट्रा लेसन्स की वजह से आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ। वो एजुकेटेड था, वो अफ्रीका से था, लेकिन फिर भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। एक बंदे की वीडियो में देख रहा था कि जिसमें वो कहते हैं ये क्यों बना, मतलब ओबामा भी खुद ही कह रहा था कि मैं क्यों बना। मुझे बताया गया कि तुमने हमें इसलिए हमने तुम्हें इसलिए प्रेसिडेंट चूज किया है अमेरिका का कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम्हें पता है, तुम्हें जिंदगी के वो मराहिल गुजरे जो दूसरों पर नहीं गुजरे। उनकी मिसाल से भी आप मोटिवेशन हासिल कर सकते हो, क्योंकि माँ बाप के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको फिर भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा, लेकिन फिर भी आप उनको फायदा ना दो ना, इस चीज का सिला ना दो, तो वो खफा होंगे कि नहीं, डिसहार्ट होंगे ना। तो ऑलवेज गिव रिजल्ट दिया करो, लेकिन 99% इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी इंस्पिरेशन बनाने के लिए, बड़े मकाम तक पहुंचने के, आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये विजन और मिशन में भी एक फर्क है कि मिशन जो है वो आपके स्ट्रगल होता है अपने विजन को पाने के लिए, विजन आपका मकसद होता है। और अब मेरे सेशन का दूसरा पार्ट पाकिस्तानियत के बारे में, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से कि ये एक मकसद पर बना, और वो मकसद ये था कि एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबखा के काशगर तक। ये उस वक्त अल्लामा इकबाल को क़ायद-ए-आज़म का मतलब एक मकसद था कि पाकिस्तान बनना है तो इस मकसद के लिए बनना है, मकसद था पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का मकसद ना होता तो आज पाकिस्तान नहीं बना होता। मकसद ये था पाकिस्तान का कि एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, और आपके आने वाले दौर की पूरी दुनिया की इमामत पाकिस्तान ने करनी है, उम्मत मुस्लिमा की इमामत पाकिस्तान ने करनी है, खिलाफत राशिदा का निज़ाम फिर शुरू होगा, दोबारा इस्लामिक निज़ाम जो है आएगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया को लीड करेगी। और ये मकसद भी था कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कोई काम नहीं होगा जब तक पाकिस्तान से पूछा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कुरान-ए-उला, हमारे मुसलमानों की 800 साल जो तारीख थी, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो जरूरी ये है कि आपने इकबाल को पढ़ना होगा, बाबे को आपने पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप बाबे को, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अगर पाकिस्तान से निकालते हो तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान की नजरियाती जड़ों को आप खुद ही काट दो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को आप पढ़ो, उनके अशार, उनके डेप्थ में जाओ कि वो क्या कहते हैं। वो सबक पर फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का लिया जाएगा काम तुझसे, फिर दुनिया की इमामत का कहते हैं। वो निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस की बात करते हैं, वो कहते हैं यही है रास्ता सफर मेरे कारवां के लिए। वो कहते हैं उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खूमसाद हजार अंजुम से होती है एक सैर पैदा। हम पर जो है मतलब मुश्किलात गुजरेंगी, लेकिन अल्लाह पर राहत भी देगा। जिस तरह जब तुर्की में लीडरशिप की नस्री ख़त्म हो गई, लीडर्स कम हो गए, सही लीडर्स कम हो गए और खिलाफत उस्मानिया जो है वो टूट रही थी, तो उस वक्त जब सारे मुल्क के लोग जो है वो परेशान थे, तो इकबाल कहता है उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खूनसद हजार अंजुम से होती है एक सैर पैदा। कि खूनसद हजार रात के सितारे जो है हजारों लाखों करोड़ों सितारे वो कुर्बानी देते अपनी रोशनी की, तब जाकर दिन का सूरज तुलू होता है। तो ये हम सारे जो है हम रात के सितारे हैं,
हम लाखों करोड़ों, ये जो 22 करोड़ जितनी भी आवाम, हम सारे जो है रात के सितारे हैं। हमने कुर्बानी देनी है तो तब जाकर एक नई सैर का आगाज होगा और नई सुबह तुलू होगी, तब जाकर आने वाली नस्लें जो है वो पूरी दुनिया की इमामत करेगी, तब जाकर हमारी आने वाली नस्ली पूरी दुनिया की इमामत करेगी, और तब जाकर फेरारी, BMW, मर्सिडीज, शेवरले, टोयोटा, होंडा, इन सबसे बेहतरीन गाड़ियां हमारे मुल्क में बनेंगी, और तब जाकर iPhone X और Samsung S9 Plus और इन सबसे बेहतरीन मोबाइलें हमारे मुल्क में बनेंगी, तब जाकर ये सारी चीज़ें, सबसे बेहतरीन चीज़ें हमारे मुल्क में बनेगी। प्रोडक्शन अच्छा होगा, एजुकेशन सबको प्रॉपर ही मिलता रहेगा, लेकिन हम सब ने कुर्बानी देनी है इस मुल्क के लिए। और याद रखिए, आप तब कामयाब होंगे, कामयाबी का एक आखिरी जरिया, अब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप इस मुल्क के लिए काम नहीं करोगे। अगर आप अपने मुस्तकबिल के लिए काम करोगे, अपने मुस्तकबिल के लिए मिलावट करोगे, अपनी मुस्तकबिल के लिए मुल्क का, इस पाकिस्तान का, इस पाक सरजमीन का पासपोर्ट फाड़ोगे। अगर ज्यादातर नौजवान हमारे ऐसे जो कनाडा जाते हो पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ देते हो, फेंक देते हैं, और वहाँ की, सिर्फ वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए इस मुल्क का पासपोर्ट तक फाड़ देते हैं। हमारे ज्यादातर नौजवान कैसे होते हैं जो बाहर गाड़ियों पे जो चीजें बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रॉबेरी खरीदी है, चलो आजकल स्ट्रॉबेरी का किलो कितना मिलेगा? 230 होगा तकरीबन, 200 तक होगा। एक गाड़ी वाले के पास जाओ, वो कहता है 200, दूसरी वाले के पास जाओ 230, तीसरे वाले के पास जाओ 250, तीसरे वाले से बोलो यार पहले वाला तो 200 कह रहा था, वो कह रहा है, वो कसम खाएगा والله ب 200 रुपये خو يخبل انا وسم شو كو شلو قدل زیادہ لوگ خس میں کہتے ہیں والله ب 200 रुपये में خبل انا وسم شکر کا 20 रुपये دل دا فائدہ در کو ما کہ مطلب وہ دھوکا کر رہا ہے اور یہی پیسے حرام بنتے ہیں اور یہی پیسے اس کے بچوں کے پیٹ میں جا کر وہ اس کے بچے وہ غذا خرید کر اس کے بچے جو کھاتے ہیں لیکن پھر اس کا بیٹا بڑا ہو کر وہ بھی حرامی بنتا ہے وہ بھی پھر حرام کماتا ہے اس کا بچہ بھی بڑا ہو کر پھر حرام کماتا ہے اپنے باپ کی طرح وہ بھی دھوکا کرتا ہے اور اس کا بچہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہمارے زیادہ تر نوجوان بہت زیادہ کوشش کرتے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے لیکن ان کی ناکامی میں ماں باپ کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کیوں ماں باپ حرام پیسے کماتے ہیں اگر ماں باپ حلال پیسے کمائیں دھوکا نہ کرے فریب نہ کرے جھوٹ نہ بولے خیانت نہ کرے ملاوٹ نہ کرے اور وہ حلال رزق بچے کے پیٹ میں جائے تو کل کو وہ اٹھے گا پروفیسر کا ہر ایک لفظ جو ہے اس کے دماغ میں پڑا ہوا وہ کبھی بھی پوری زندگی میں نہیں بھولے گا لیکن ہمارے زیادہ تر ماں باپ جو ہے وہ دھوکا کرتے ہیں وہ فریب کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں دودھ میں ملاوٹ شروع ہو گئی پانی میں پانی ملاتے ہیں میں اس دن نیوز میں سن رہا تھا کہ چاولوں میں ابھی پلاسٹک کی چاولیں شروع ہو گئی اتنا دھوکا چل رہا ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے آگے بڑھنا ہے پوری دنیا کی پازیٹیو پاکستان کی پازیٹیو تصویر پوری دنیا کو دکھانی ہے ہم نے متحد ہونا ہے یہ میرا بھی مشن ہے کہ پورے پاکستانیوں کو متحد کروں پوری پاکستانیوں نے پورے امت مسلمہ کو متحد کروں اور اس کا بیسٹ ایگزامپل آپ کو یورپ سے ملے گا 45 ممالک ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہ 45 ممالک میں سے جو بھی ممالک وہ کمزور ہوتا ہے وہ اپنی جو سکسیس جو انکم ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کے اس 5 سال تک اس ملک پہ لگاتے ہیں کہ یہ ملک بھی اس میں بھی پروڈکشن ہو اور یہ ملک بھی ہمارے ملک کی طرح بنے ہمارے ملک کی طرح پروڈکٹیو بنے 45 ملک ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور سب ملکوں کی مذہب بھی ہے یہ سب ملکوں کا جو ہے کرنسی بھی ایک ہی ہے یورو سب ملک کی ایک ہی کرنسی ہے تو اگر 45 ممالک ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم امت مسلمہ کیوں متحد نہیں ہو سکتے ہم نے متحد ہونا ہے اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے میں کبھی نہ کبھی اپنے شعر جو ہے اشعار بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں اور ایک شعر میں نے یہ بھی اپنا اپلوڈ کیا تھا کہ کیا پختون کیا پنجابی کیا سندھی کیا بلوچی خود کو پکارتے رہتے ہو اے نوجوانوں میں نے رمضان اور قرآن اور پاکستان کو ایک ساتھ اترتے ہوئے دیکھا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے یہ مت کہو کہ یہ پنجابی ہے میں اس کے ساتھ کلاس روم میں اگر آپ بیٹھتے ہو پنجابی سے دور رہتے ہو تم پٹھان سے دور رہتے ہو تم بلوچی سے دور رہتے ہو تم فاٹاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے دور مت رہو یہ سب تمہارے بھائی جیسے ان سب کو متحد کرو ان سب کو بھی آئیڈیا شیئر کرو اور سب آپس میں دوست رہو ہم ایک پاکستانی ہیں
ہم نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی اور نہ پٹھان ہیں، ہم صرف ایک پاکستانی اور پاکستان کے لیے کام کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سوال جی ہم بڑے کیوریس تھے آپ کو دیکھنے اور ملنے کے لیے. پلیز اپنا تھوڑا تعارف کروا دیجیے کہ آپ کیا چل رہا ہے اور کیا پڑھے لکھے ہیں. اچھا سے شو. میرا نام حماد صافی ہے اور میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں اور میری عمر 11 سال ہے اور لوگ مجھے پیار سے ننا پروفیسر اور ننا صحافی بلاتے ہیں، لیکن میں نہیں ہوں. یہ لوگ مجھے اپنے پیار کی وجہ سے، لو کی وجہ سے مجھے رسپیکٹ اور آنر دینے کے لیے پروفیسر اور صحافی بلاتے ہیں. اور میری ذاتی اچیومنٹس میں ورلڈ ینگسٹ فری لانسر ہوں. جو میں بات کر رہا تھا فائنینشیل پروسپیرٹی کی، میں انٹرنیٹ سے ارننگ کر رہا ہوں اور میں ایک بلاگر ہوں انیشیل سٹیجز میں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، جس طرح آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اور اسپیچ دی ہے. اور اس کے بعد آخر میں جو ہے ایک آرٹیکل رائٹر ہوں، میں خود کے آرٹیکلز لکھتا ہوں. آپ نے جو باتیں کی بڑی اچھی لیکن آپ ہمیں یہاں پہ لائف کے اوپر لیکچر دینے کے لیے آئے ہو. میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ کی اپنی لائف میں کیا اچیومنٹس ہیں، آپ نے ابھی تک لائف میں کیا چیلنجز میں نے تو بتایا نہیں کہ میں ایک موٹیویشن اسپیکر ہوں، طلباء کے لیے انسپائریشن. اس دن مجھے بلوچستان سے کال ہوئی اور بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جب بھی پہلے گھر جاتا تھا نوکری سے تو میرے بچے مجھ سے موبائل لے کر جو ہے وہ گیمز کھیلتے تھے، لیکن آج کل میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے حماد کی ویڈیو لگاؤ، مجھے حماد کی ویڈیو لگاؤ. اسٹوڈنٹ جو ہے میری وجہ سے طلباء جو ہے، بچے جو ہیں پہلے ڈاکٹر بنتے تھے لیکن ابھی وہ کہتے ہیں میں نے پروفیسر بننا ہے، میں نے اس ملک کو متحد کرنا ہے، میں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے کام کرنا ہے، میں نے کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے، میں نے کچھ ڈفرنٹ کرنا ہے، مختلف کرنا ہے. یہ بھی میری ایک اچیومنٹ ہے. فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہو اور پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فیوچر میں پہلے میں بتاؤں گا کہ میں ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں تاکہ اس قوم کو لیڈ کروں، میں اس نیشن کو، پوری امت مسلمہ کو لیڈ کروں. اور دوسری میں جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹس بنانا چاہتا ہوں، حماد صافی انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز اینڈ ریسرچ کے نام سے. یہ ایک پروجیکٹ ہوگا جو پورے ایشیا میں پھیلے گا اور سب کانٹیننٹ دوبارہ بنائے گا اور ایک سلطنت مسلمانوں کی دوبارہ بنائے گا. اور پاکستان کے لیے کہ میں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو متحد کروں، پوری نیشن کو میں متحد کروں، ان کو رائٹ و پرومیننٹ ڈائریکشن دوں. 1400 سال کی جو تاریخ ہم سے کاٹی گئی ہے وہ ان کے ساتھ جوڑوں. اور اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفی، ان کے کلام کو لوگوں کو پڑھاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی لوگوں کو پڑھاؤں. بھائی ہے کہ جیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کو ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں مسئلہ یا کیا کیسے پتا چلے گا؟ اور میں نے خود کو ایسے جانا کہ ماں باپ نے بھی مطلب مجھے اندر سے جھانکا اور میرے ٹیچرز نے، میرا اساتذہ کرام نے، چونکہ وہ بھی ایکسپیرینس تھے، انہوں نے مجھے اندر سے جھانکا کہ میں کیا بن سکتا ہوں. اور اگر آپ اپنا مطلب چاہتے ہو کہ میں کیا بن سکتا ہوں، میں نے جس طرح بات کیا فار ایڈوائسز، آپ جو ہے ایلڈرز کے ساتھ جائیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے، اپنے استادوں سے پوچھیں اور لائف چینجنگ سیمینارز میں حصہ لیں. جس طرح مطلب اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں ڈفرینٹ پروگرامز بھی ہوتے رہیں گے، اس میں آپ حصہ لیں. ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میری انر پوٹینشیل کیا ہے، میرے اندر وہ کون سی روح بیٹھی ہے، میرے اندر کون سا حماد صافی، کون سا حسنین، کون سا ملک شاہد بیٹھا ہے، تاکہ میں اس کو دکھا کر پوری دنیا کو دکھا سکوں. جب آپ مطلب سوشل میڈیا پہ آئے ہیں یا کوئی ایسا کیا واقعہ ہوا ہے جب آپ مطلب ایک ہوتا ہے کہ بندہ ایکسپلور ہو جاتا ہے، وہ کیا واقعہ ہوا ہے یا کور آپ کو آگے لایا ہے؟ جی وہ پہلی دفعہ مطلب میں اتنا وہ فیمس کیسے زیادہ ہو گیا، اتنا فیم کیسے میں لیا، میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا تھا. اور میری جو خود ہی یونیورسٹی ہے جہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ ریسرچ پشاور، میں وہاں پر اسٹوڈنٹ بھی ہوں. وہاں پر میں نے لیکچر دیا تھا. اور دوسرا میں نے پشاور یونیورسٹی میں ایک ماسٹر لیول، پی ایچ ڈی لیول کے جو جرنلسٹ تھے ان کے سامنے میں نے 1 گھنٹے کا سیشن لیا تھا ان کے ساتھ.
तो वो वीडियो जब मेरी वायरल हुई, वो पिशावर यूनिवर्सिटी वाली वीडियो 2.6 मिलियन व्यूज उस पे आए, तो उसकी वजह से लोग, मतलब ये भी एक इंस्पायरेशन की बात हुई कि लोग कह रहे थे कि ये 10-11 साल का बच्चा ये खड़ा होकर PhD लेवल के लोगों के सामने अगर 1 घंटे का सेशन ले सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये बात भी थी। और इसके ऊपर फिर इंडियंस, हमारे जो हिंदुस्तान के जो भाई है, जो हिंदू भाई है हमारे, उन्होंने भी तीन दोस्त हैं हमारे, उन्होंने भी वो वीडियो बनाई थी, वो पिशावर यूनिवर्सिटी वाले। वो कहता है इसकी बातों को छोड़ो कि ये क्या बोल रहा है, ये देखो कि 10 साल का बच्चा PhD लेवल के सामने ये बातें कैसे कर रहा है। ये एक इंस्पायरेशन थी। हमारा एक डिपार्टमेंट है सुपर किड प्रोग्राम के नाम से, और उसमें मैं उसका हेड भी हूँ, और ये मेरा एक स्टूडेंट भी है, मेरा पार्टनर भी है सुपर किड प्रोग्राम में। और इंशाल्लाह मेरे बात ये आकर यहाँ पर खड़े हो कि स्पीचेस डिलीवर करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, इंशाल्लाह उस मुल्क की खिदमत करेगा। और ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट एक और बच्चा है, उसकी तारीफ मैं आपसे कराऊँ। वो 5 साल का, उसका नाम हसनैन है। एक किस्सा, मतलब एक वाक़या से हुआ कि 1-2 हफ्ते पहले AFP फ्रांस से लोग आए थे मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने पे, लेकिन 2 बजे हुआ था। जैसे ही वो आया फ्रांस, मैंने उसको जो है फ्रांस वाले उस आदमी के साथ, वो जॉरिस प्रायोरिटी के साथ, जो कि अंग्रेज था, फ्रांस से आया था मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के, मैंने उसको उसके साथ इंट्रोड्यूस किया। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उसको चाइनीज़ ज़बान भी आती है, उसको इंग्लिश ज़बान भी पूरा कमांड है, अमेरिकन एक्सेंट के साथ, ब्रिटिश एक्सेंट के साथ। 5 साल उम्र है उसकी, हम दोनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो फ्रांस न्यूज़ वाला मुझे छोड़कर, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के ऊपर छोड़कर उसके साथ लग गया। मुझे छोड़कर मुझ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने, मुझे छोड़ दिया, उसके साथ लग गया। मैंने उसको तारुफ कराया, वो उसके साथ इंग्लिश में शुरू हो गया, कौन सी क्लास में हो, क्या करते हो तुम, क्या करते हो, क्या तुम्हारी मतलब अचीवमेंट क्या, कितनी क्लासें लेते हो। और वो हंसने से कहता है मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक स्टडी करता हूँ। वो हैरान था कि 5 साल के बच्चे को देखो, इतनी बड़ी मतलब स्ट्रगल करते हुए देखो, इतना मतलब नॉलेजेबल है, इंग्लिश बोल सकता है, चाइनीज जबान बोल सकता है, इटालियन फ्रेंच जबान थोड़ी आती है, जर्मन उसको थोड़ी आती है। हम दोनों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है। ये हमारा सुपर किड प्रोग्राम है, उसमें हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन शर्त एक है कि उसको इंग्लिश और कंप्यूटर आना चाहिए। तो उसको भी हमने उठाया, इंशाल्लाह हम दोनों के बाद फिर वो होगा, वो भी फिर यहाँ पर आएगा और हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीचेस देगा। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, माशाल्लाह आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन होता ही कि मगरिब में जब उन्हें पता, जैसे भी आपने बताया कि फ्रांस से वो डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे, तो अगर किसी यूरोपियन कंट्री से, ताकि वो जहन साजी अक्सर कर देते हैं, तो आपको अगर वहीं पे कहीं तालीम के लिए वो आपको ऑफ़र करें, कहीं लंदन में या तो पाकिस्तान को, आप छोड़ तो नहीं जाएंगे? मैं हर एक आर्टिकल जब लिखता हूँ, उस आर्टिकल के आखिर में, एंड में मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान देखता है, सुनता है और बोलता भी है। इस मुल्क के साथ ख्यानत नहीं करना, मैं ये लिखता हूँ। और एक आर्टिकल में मैंने ये भी लिखा था कि अगर कल को मुझे फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, अमेरिका की फ्लोरिडा जो एक प्रोविंस है, अमेरिका का एक स्टेट है, उनकी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, उधर से ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये शाहीन उस जगह उस वक्त उस हर एक ऑफर को जूते की ठोकर पर मारेगा, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इल्म की बात आए तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाओ। चीन का मतलब ये नहीं कि चाइना जाओ, चीन का मतलब पूरी दुनिया जाओ। इल्म हासिल करनी है, मैंने उनके दिमागों को पढ़ना है, दिमागों को पढ़ने की ज़रूरत है कि मैं अंग्रेज़ी सीखूं। अंग्रेज़ी मैंने सीख लिया है और मैं अंग्रेज़ी पे और भी काम कर रहा हूँ, रिसर्चेस कर रहा हूँ। उसको आप लोगों की मैं ये सजेशन देता हूँ कि अगर उनके अंग्रेज़ों की दिमाग पढ़े तो अंग्रेज़ी सीखो। मैंने भी अंग्रेज़ी सीखी, इल्म हासिल करने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की बात आए तो उस वक्त ये शाहीन हर उस चीज़ को जूते की ठोकर पर मारेगा। सॉरी आपके बच्चे हैं? सवाल पूछा तो मैं ज़ाहिरन समझा कि होंगे। अपने बच्चों की तरबियत अगर कैसे करनी है ताकि वो मेरी तरह बने, सबसे पहले माँ बाप
जो बच्चे की तरबियत करता है, नरिशमेंट करता है, उसमें बचपन से बड़ा किरदार होता है। और खासकर 2 साल से लेकर 7 साल के दरमियान तक ये ऐसा टाइम होता है ना कि जिसमें बच्चा उधर देख रहा होता है लेकिन इधर कोई चीज होती है उसको भी वो कैच करता है, उसके दिमाग में वो चीज भी सेव होती है। चाहे वो आगे देख रहा है और ये इधर जो चीज पड़ी उसको भी वो कैच कर लेता है, उसके दिमाग में पड़ा रहता है। तरबियत कैसे करनी है? बच्चों को जो है आप आसानियाँ पैदा करो उसके लिए। मतलब बच्चे को जो है गूगल और यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर, बुजुर्गों के साथ बिठाओ, उसको जो है मतलब इकबाल की जो वो कलाम है, उसकी फिलॉसफी है, वो उसको सिखाओ। उसके जो है मतलब लाइव शोज उस पर कराओ, उसके अंदर वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो ताकि वो आगे जा सके। लेकिन याद रखना, बच्चों के साथ ना ज्यादा नरमी करनी है ना ज्यादा सख्ती करनी है। ज्यादा नरमी करोगे तो बच्चा सोसाइटी में इधर उधर भटक जाएगा। सोसाइटी में वो बच्चा सोसाइटी में इधर उधर दोस्तों के साथ चला जाएगा। ज्यादा सख्ती करोगे तो बच्चा पे डरता है, डर की वजह से वो सबक पढ़ता है, वो बच्चा फिर आपसे डर जाता है। सोने का निवाला देना है लेकिन शेर की नजर से भी अपने बच्चों को देखना है। अगर आपने उसको कोई चीज देनी तो उसका फायदे भी नहीं लेना। अगर बच्चे की कोई ख्वाहिश पूरी करनी है तो बच्चे से पूछो ये चीज उसके काम की चीज है कि उसके काम की चीज नहीं है। कभी कभी जिनहटिक बंदे को मलाला दूसरे जैसा मुल्क से भी बचाते हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ इस तरह हो जाए ना। सर मेरे ख्याल में आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना कि जहाँ पर पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की बात है तो वहाँ पर ये शाहीन हर उस चीज को जूते की टोकर पर मारेगा। हमारे मुल्क में डायमंड्स उभर कर आते हैं, हमारे मुल्क में डायमंड्स उभर कर आते हैं लेकिन उस डायमंड्स को हम जाया कर जाते हैं। अरफा करीम थी हमारे पास, उसको अल्लाह ले गया, अल्लाह ने उसको उठा लिया, अपनी तरफ खींच लिया। मलाला यूसुफजई थी, वो भी जो है मलाला यूसुफजई है, लेकिन हमने उस डायमंड को जाया कर दिया। कैसे जाया कर दिया? उस डायमंड को अंग्रेज के हवाले कर दिया। वो भी मतलब हो सकता है वो भी आगे जाकर हो सकता है उसके प्लान्स चेंज हो जाए, वो भी पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम कर ले, हो सकता है ये भी हो सकता है। उसको जाया हमने नहीं कर, लेकिन हम उसको जाया कर चुके हैं। लेकिन अच्छा देखिए सर, अगर मेरी मतलब मुझे से डायमंड की बात हुई, मैं ये और मेरे सारे जितने भी सुपर किड्स है ना, हमारा सबसे पहले लेक्चर यही होता है इकबाल के हवाले से। उसमें हमें यही सिखाता है कि बी अनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, कभी बिकना और कभी खयानत नहीं करना। अल्लामा इकबाल का कलाम ऐसे लोगों की तरबियत करता है ना, ऐसे शाहीन बनाता है जो कभी ना बिकते और ना कभी खयानत करते। जिस तरह कायदे आज़म की उसने तरबियत की, वो अनकरप्टेबल और अनपरचेजेबल बन गया। वो इंग्लिस्तान को छोड़कर जब पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में आए, उसने मेहनत की पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, और अपने बच्चों को भी इकबाल का कलाम भी सिखाएं ताकि वो अनकरप्टेबल और अनपरचेजेबल बने। वो शाहीन बने जिसकी परवाज बादलों से ऊपर भी हो, जो चट्टानों के ऊपर उसकी परवाज हो, वो शाहीन वो बनाता है। थोड़ा तेज बोले। हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हमारा विजन बहुत क्लियर है और इसके लिए हमारे पास दुनिया के अजीम लीडर मौजूद है, जैसा कि अब्दुल इस्लाम जो कि दुनिया का अजीम लीडर है। उनकी तरह कोई कौम भी नहीं कर सकता, कोई भी बंदा तारीख इतनी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अवामिल जो हमें अपनी विजन की तरफ आगे बढ़ने नहीं देते, हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने नहीं देते। हमें एक जिसको चैलेंज करना है ना, हमें को चैलेंज कर लिए मकाम जरा तेज बोले। नहीं, मैं फर्स्ट सेक्शन पर समझ गया लेकिन आखिर में स्लो बोला। हाँ पता है, आई अंडरस्टैंड। मेरा भाई कह रहे हैं कि मतलब हमारा एक विजन है, हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है कोई हमें। एग्जैक्टली यही काम होता है। हम सोसाइटी में हमारे मतलब लोग ऊपर कर आ जाते हैं, वो अपना एक मिशन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसको आकर कहते हैं कि तुमने डॉक्टर इंजीनियर ने बनना है। उसका मामू उसको आता है इंजीनियर के अंदर ये इंजीनियर बनना है, लोग आते हैं उसको भड़काते हैं। क्यों? आप जो अपना विजन सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप इन चीजों को इग्नोर करो, उन लोगों को इग्नोर करो जो आपको कहते हैं कि इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ। डेस्टिनी बनानी है, मेक योर ओन डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी खुद बनाओ।
दूसरों को अपनी डेस्टिनी में, अपने मकसद में इंटरप्शन करने ना दो। आपकी जिंदगी है, आपका मकसद है, आपका विजन है, आप दूसरों को क्यों छोड़ते हैं? आपके अंदर खासियत है, आपके अंदर खासियत है कि आप इंजीनियर बने, लेकिन आपका दोस्त आपको कहता है कि डॉक्टर बनो। इन चीजों को इग्नोर करो, ऐसे दोस्त भी ना बनाओ। इस तरह मैंने बात की, उन लोगों को अपने साथ शामिल करो जो आपकी फील्ड के ही बंदे हो, जिसकी माइंडसेट आपकी ही तरह हो, जो भी उस सर्कल से, उस तरह सर्कल की बाउंड्रीज को तोड़कर बाहर जाकर सोच रखते हैं, आइडियाज रखते हैं। हमारे मुल्क में एक कमजोरी है, हमारे मुल्क के लोगों की एक फेलियर है कि जिसमें वो सोच महदूद रखते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आटे से क्या क्या बन सकता है? शरीश जो है रोटी बन सकती है, ब्रेड बन सकता है और बहुत सारी चीजें बन सकती है। अगर आपसे भी मैं सवाल पूछूं क्या बन सकता है आटे से, क्या बन सकता है? कौन बताएगा? सॉरी जी, I want to become the chief justice of Supreme Court in the future. मेरे सवाल का जवाब दे। आटे से क्या क्या चीजें बन सकती है? आटे से क्या क्या चीजें बन सकती है? नो 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 नो, सवाल हो गया सब मेरे सवाल का तो जवाब देना, फिर आपके सवाल की तरफ आएंगे। अच्छा छोड़े, और कौन दे सकता है मुझे? थोड़ा सा पानी ज्यादा डालें तो वो एल्फी भी बन जाए। अच्छा एल्फी भी बन जाए, गुड। और सॉरी क्या? अच्छा और अच्छा सही है, सही है। ज्यादातर लोगों को देखिए कुछ चीजें बताकर, 5-6 चीजें बताकर हमारी सोच खत्म हो जाती है। सोच को उस जगह से शुरू करो जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, वहां से अपनी सोच की शुरुआत करो। उस बाउंड्री को खत्म करो, उस डॉट को, उस पॉइंट को खत्म करो जहां पर आपकी सोच रुकती है, उसको मिटा दो और उसके आगे सोचो। आटे से सिर्फ ये चीजें नहीं, बस और भी बड़ी चीजें बन रही, न्यू आइडियाज भी क्रिएट हो जाएंगे। एक सवाल, लास्ट सवाल होगा और आप बताएं, आप बहुत टाइम से खड़े हैं। One common question, as you mentioned before a couple of minutes, that I was giving a lecture in the front of PhD scholar. So what are the main reason behind that? You don't feel any hesitation while you are addressing your speech in the front of a lot of people? Good, that was a nice question. पूरे सेशन में ये अच्छा क्वेश्चन मिला। नहीं सुना? अच्छा मैं इनका क्वेश्चन जाहिर करता हूँ। इन्होंने बोला कि मतलब तुम खड़े होते हो, ये कॉमन सवाल है, तुम PhD लेवल के लोगों या स्टूडेंट्स के सामने, इतने लोगों के सामने, हजारों लाखों लोगों के सामने स्पीच डिलीवर करते हो, हेजिटेशन तो फील नहीं होती, डरते तो नहीं हो? मेरा जो फर्स्ट स्पीच थी जो मेरी यूनिवर्सिटी स्पोकन इंग्लिश, उसमें मैं थोड़ा सा डरा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, लाइफ का फर्स्ट टाइम था। उस वक्त मैं 8 साल का था, 8 साल की उम्र थी मेरी, और फर्स्ट स्पीच थी उसमें मैं थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन फील हो रही थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की। और अगर आपने ये हेजिटेशन खत्म करनी है ना, तो आपने शुरुआत किससे लेनी होगी? टॉपिक प्रिपेयर करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, या टॉपिक भी प्रिपेयर ना करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो मुंह में आता है बोलो, जो दिमाग में पड़े बोलो, दिमाग खुल जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा। वो मिरर के सामने सिर्फ एक बंदा होगा, तुम। मैंने इस आइडिया को लिया, मेरे उस्ताद ने मुझे ये पॉइंट बताया था कि तुम लाख करोड़ों लोग भी है ना, लेकिन सब तो तुम्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर एक बंदा तुम्हें अपनी आंख से देख रहा है, अपनी आंखों से हर एक बंदा तुम्हें देख रहा है। तो इसका मतलब एक आदमी अपने एक आदमी से देखता है, तो इसका मतलब करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग नहीं है, एक आदमी आपको देख रहा है। ये लास्ट जी सर, एक सवाल लास्ट, इसके बाद मेरे भाई से सवाल पूछे चले। Talk about success. जी। The definition of success is vary by person to person. And as per your point of view, what success is? At my point of view, success वो है जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बस मैंने जो करना था वो कर लिया, आपका दिल खुश हो जाए, आपके ऊपर वो बर्डन कम हो जाए। सक्सेस आपकी जिंदगी के विक्ट्री को कहते हैं, आपकी जिंदगी के जीत को कहता है। लेकिन याद रखें, दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा फेल ही तब होता है जब वो कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो कामयाब हो जाता है वो अपनी मेहनत, अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई, अपनी वो दिन रात की स्ट्रगल छोड़ देता है। एक बड़ी नाकामी भी है। लेकिन मेरी नजर में सक्सेस जो है वो अपनी जिंदगी में अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि मतलब मैंने जो करना जिस कौम को खैर देना था वो दे दिया। एसोसिएट प्रोफेसर जावेद अमान फटक साहब को इस प्रोग्राम का यादगारी शीट पेश करें।
सीधा हो गया आ रहे हैं आराम से उलाड़ लेता स्लो थोड़ा यूं ये